Good morning, class ninth. So, as you have already finished with chapter number 5, that is cell, the unit of life, right? So, after completion of that chapter, now I'm going to start with a new chapter with you, that is chapter number 6, and chapter's name is tissues. As you know that now you have idea about the cell and you have discussed very new terms in that chapter. So continuing after chapter 5, now let's start with our new chapter, that is tissues. If we talk about the multicellular organisms, what are multicellular organisms? Which are made up of more than one cells. Multicellular organisms कौन से होते हैं? Which are made up of more than one cell, right? Those are multicellular organisms. So whenever we say about multicellular organisms, they are made up of millions of cell. I already told you, more than one cell, they are the multicellular. So they are made up of millions of cells. Now these cells, there are so many cells, so these cells, they show some specific functions. Specific functions मतलब उनके कुछ अपने अपना काम करने का एक every cell is designed for a particular function. So इस particular function को हम बोलते हैं कि उनका जो काम है वो हम divide कर दिया हुआ है in multicellular organism. So in multicellular organisms, cells show division of labor. Each cell, division of labor means that each cell perform a particular function effectively. जो जो काम जिस सेल को दिया जाता है, that cell perform that particular function very very effectively in multicellular organisms, right? So these cells, when these cells they combine together or group together, then they are known as tissues. So cells, बहुत सारे cells जब combine करते हैं, then what they will form? They will form tissues, right? So if you have to define tissue in your exam, how or otherwise also, what will you say? That a group of cells that are similar in structure and origin. Origin means they are arise from a same parent cell. Suppose you have meristematic tissue, we will discuss it later. This is a one kind of tissue that suppose do you have meristematic tissue, then it means many group of cells, they form a meristematic tissue. So these cells, they are meristematic in nature, only then they will form the meristematic tissue. So they are same in structure as well as same in their origin. So these group of cells, which and they will perform a same function, similar function, these type of group of cell is called tissue. Again, one more time I will repeat, group of cells, the group of cells which are having same structure. Three things you have to write here: same structure, same origin, and they perform similar function. So these groups of cells, they are known as tissue. After if you are clear with the definition of tissues, जब हम स्टडी करते हैं सिर्फ टिश्यूज की, दैट काइंड ऑफ स्टडी इज नोन एज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी जैसे बायोलॉजी. व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज ऑलवेज स्टडी ऑफ living things, right? This is always study of living beings, or you can say living things. That is biology. Same way when we study tissues, that is called histology. In if we talk about specifically human body, I have taken here example of human body. That cells, you know, that group of cells combine to form tissues. Tissues combine to form organs. ये आपने 8th में भी पढ़ा है चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में, दैट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज,
tissues combine to form organs, and because we are multicellular organisms, so organs combine to form organ systems, right? So if we talk about, I talk about cell. How does, if this is a cell, what is present in a cell? Nucleus, then there is a mitochondria, then there is cytoplasm, various organelles, there is a mitochondria is present, chloroplast. If it is a plant cell, then there will be chloroplast, right? So Golgi body is there. So these different things are present in a cell, like nucleus, mitochondria. When these cells combine together, they form a tissue. हमारी बॉडी में टिश्यू क्या है? कार्डियक मसल. कार्डियक मीन्स, कार्डियक वर्ड हम यूज़ करते हैं हार्ट के लिए. हार्ट के जो मसल हैं, सी, बहुत सारे आपकी बॉडी में पहले सेल्स बने. देयर आर मैनी सेल्स, दे कीप ऑन डिवाइडिंग. ये डिवाइड करेंगे तो और ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाएगा. दे विल बिकम मोर इन number now, but because we are multicellular, they have to perform a specific function. या तो ये हार्ट में चले जाएंगे, या ये लीवर में चले जाएंगे, या ये लंग में चले जाएंगे. So those cells which perform function in the heart, there one of the example is like many cells combine to form muscle. So cardiac muscle is a tissue. Then these tissues combine to form a organ. कार्डियक मसल्स जो कंबाइन करके ये क्या बनाता है? एक हार्ट बनता है. मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तभी आपका हार्ट वर्क करता है. सो दीज मसल्स दे कंबाइन टू फॉर्म द हार्ट. हार्ट इज़ अ ऑर्गन. अल्टीमेटली सिस्टम क्या है जिसके थ्रू हमारा हार्ट पंप करता है? पंप करना मतलब आपने अपनी हार्ट बीट सुनी होगी, दैट इज़ लब डब. हार्ट जो कर, हार्ट का जो मेन फंक्शन है, दैट इज़ पंपिंग सिस्टम. वो पंपिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी. किस सर्कुलेटरी मतलब ये ब्लड सर्कुलेट करता है. दिस इज़ वन काइंड ऑफ जस्ट एग्जाम्पल. आपको इसका बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, बट आई जस्ट गिविंग you example that how cells combine to form the tissues, how tissues combine to form organs, and how organs combine to form organ system, right? So but the question here comes, if I ask you that are plants and animals, they are made up of same kind of tissues, the answer will be like obviously not. If we look at the animal tissues moving होते हैं. Animals, not tissues, animals. If I talk about animals move करते हैं. Animals are mobile in nature. They, when anything is so active, it means it require more energy. More energy means more living tissues are required in case of animals. But what happened to the plants? Plants move करते हैं? No. Plants are stationary, so they do not require much energy. So therefore their living tissues are not much required. इसीलिए plants में maximum or many dead tissues are also present. But in animals, live or living tissues are more. Right? Then if we talk about growth, as you can see that cell growth is uniformly distributed. पहले एक cell से there is a fusion, baby बनता है. Then baby से there is a child, then child change into adolescence, then adolescence say it change into adult, and finally the person becomes old. So there is a growth in particular age. So cell growth is particularly very distributed. But प्लांट्स के केस में क्या होता है? अगर ये ऐसे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ग्रो हो जाएगा, फिर यहाँ से ग्रोथ कई बार शुरू हो जाती है, साइड ग्रोथ शुरू हो जाती है, जो स्टेम है वो कई बार बहुत ज़्यादा थिक होनी शुरू हो जाती है. सो ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू फ्यू एरियाज़ और फ्यू रीजन्स. इट डज़ नॉट हैपन कि सारे एरियाज़ एक जैसे ग्रो करते हैं. बट इन एनिमल्स ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म. देन एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
because we are multicellular. One thing is now clear to you that we are multicellular organisms, and हमारे में जो बॉडी है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. सो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर का organization of organ system, that is more specialized as well as it is more complex. It is little bit more specific. Specialized मतलब कि अगर हार्ट के टिश्यूज़ हैं वो हार्ट में ही वर्क करेंगे, लीवर के टिश्यूज़ हैं तो लीवर में ही वर्क करेंगे, लंग्स के अपने स्पेसिफिक सेल्स होंगे वो लंग्स में वर्क करेंगे. सो हमारा जो वर्क करने का टिश्यूज़ का एरिया है वो बहुत अलग अलग है, बहुत स्पेशलाइज्ड है और कॉम्प्लेक्स भी है, इतना इजी नहीं है. बट प्लांट टिश्यूज़ की बात करो तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ organs is little less complex as compared to animals. So from here you can have what is the conclusion to tell you about all these points, that now you from these 3 points you can understand कि structure में भी difference है, फंक्शन में भी डिफरेंस है. सो ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स का स्ट्रक्चर ही बहुत अलग है. सो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. इफ नेक्स्ट टाइम somebody asks you that are plants and animals they are made up of same tissues, no, because they have different structure, they perform different kind of functions, so they are made up of different type of tissues. Now we are going to specifically talk about here that flow chart is very important for you, which you have to draw also, that tissues are of mainly of 2 types, plant tissue and animal tissue. Plant tissue, I am specifically today in today's lecture I will specifically talk about plant tissue. Plant tissue is of 2 types, meristematic and permanent. मेरिस्टमेटिक वो टिश्यूज़ होते हैं विच कंटिन्यूसली ओनली डिवाइड, विच those cells, because all tissues they are made up of cells, so those tissues in which cells are capable of cell division. सेल डिवीजन मीन्स दे कंटिन्यूसली ओनली डिवाइड. कोई भी चीज़ जब डिवाइड करेगी तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी. सो मेरिस्टमेटिक वैसे ही टिश्यूज़ हैं, दो सेल्स विच ओनली डिवाइड. परमानेंट, नाउ जस्ट लुक एट इट्स नेम, परमानेंट. अब डिवीजन नहीं है, दे डोंट डिवाइड, दे आर सेल्स. पहले आपकी बॉडी में सिर्फ सेल्स डिवाइड किए, जब ये 2 से 4, 4 से 8, सो देयर आर मैनी नंबर ऑफ सेल्स. जब बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स इकट्ठे हो गए, नाउ फ्यू गोज़ टू योर हार्ट, फ्यू हार्ट सेल्स हो गए, कुछ आपके लंग सेल्स बन गए, कुछ आपके लंग सेल्स बन गए, देन कुछ आपके लीवर सेल्स बन गए, राइट. फिर कुछ आपकी बॉडी में फैट सेल्स बन गए. सो दीज आर नाउ स्पेसिफिक, मतलब हार्ट वाले सेल्स हार्ट में ही रहेंगे, लंग्स वाले सेल्स लंग्स में ही रहेंगे, लीवर वाले सेल्स लीवर में रहेंगे. सो दीज आर नाउ मैच्योर. सो मैच्योर सेल्स दे आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. तो दो सेल्स विच आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, जिनमें सेल डिवीजन नहीं होगा अब, दे आर मैच्योर, दे आर नोन एज परमानेंट. परमानेंट दो तरह के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल क्या होती है कोई चीज़, मतलब सेम सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, मीन्स जितने भी सिंपल टिश्यूज़ होंगे, ऑल सिंपल टिश्यूज़ दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम, फंक्शन भी सेम टाइप ऑफ सेल्स. बट कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ तो अब एक्स्ट्रा होगा. सो दे आर टिश्यूज़, दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल. इसमें अगर एक सेल एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इट कैन हैपन कि सेकेंड सेल परफॉर्म different type of function, means all cells they will not be of same
type. They can have more than one type of cells. So the permanent cells कितनी तरह के हैं? Simple and complex. Now simple is of further 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And parenchyma is further of 2 types, that is chlorenchyma. ये हम पूरा डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्लो चार्ट राइट नाउ. दैट इज क्लोरेनकाइमा, CHLORENC, that is CHYMA, chlorenchyma, as well as parenchyma. So parenchyma is of 2 types, chlorenchyma and parenchyma. And complex is of further 2 types, xylem and phloem. Again I am repeating, tissues are of 2 types, plant and animal. ये main types हैं, plant, animal. Now if specifically we talk about plant tissue, they are of 2 types, meristematic जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करेंगे, permanent which will not divide, incapable of division. Permanent are of 2 types, simple and complex. Simple, they are of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma can be chlorenchyma and parenchyma, or complex is xylem and phloem. So one by one we have to discuss this flow chart one by one individually. So today I am going to take मेरिस्टमेटिक टिश्यू. प्लांट टिश्यू लिया है मैंने, प्लांट टिश्यू के अंदर भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू. मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, बेसिक डेफिनेशन आई टोल्ड यू दैट दोज सेल्स, basically those cells which are capable of divide. So though these tissues, they have power to divide, they have power to continuously divide. एंड डिवाइड होके, अब सपोज मेरे पास 1 सेल है, इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 cells. This will continuously divide to form further 2 cells. This will divide to form further 2 cells. So ultimately I started with only 1 cell. But now at the end I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cells, right? So when these cells divide to form new cells. So meristematic tissues are those in which cells continuously divide. That is the speciality of meristematic tissue. इसकी speciality है ये. अब कोई भी चीज़ डिवाइड करेगी तो उससे वो इंक्रीज हो गया. 1 सेल से शुरू हुए थे, 8 सेल आ गया, तो इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग इन नंबर. सो दिस इंक्रीज द लेंथ. अब ये कौन से किसके टाइप है? प्लांट टिश्यू की. सो वी विल ओनली टॉक अबाउट प्लांट. सो दीज मेरिस्टमेटिक टिश्यू, दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट. एंड गर्थ वर्ड हमेशा, अगर आप मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिफाइन कर रहे हैं तो आप गर्थ वर्ड लिख के आएंगे पेपर में, बिकॉज ये एनसीईआरटी में गर्थ वर्ड दिया है. गर्थ इज एक्चुअली विड्थ, मीन्स कोई प्लांट इतना था, नाउ इट बिकम दिस मच, राइट? जिसको हम, जैसे इफ स्टेम इज दिस मच, देन नाउ इट बिकम बार्क, राइट? ये बार्क कब बनती है? कंटिन्यूसली जब सेल्स बेसिकली डिवाइड होते रहते हैं. सो छोटा सा प्लांट आपने लगाया और अल्टीमेटली वो इस साइज़ का हो गया. सो ये इतना बड़ा साइज़ किस सेल्स, किस टिश्यूज़ की वजह से होता है? दैट इज़ योर मेरिस्टमेटिक tissues. So meristematic tissue help the plant to increase in the length as well as width. Width होता है चौड़ाई, right? girth, जिसको हम बायोलॉजी में बोलते हैं girth of the plants. And they are found, अब ये कहाँ मिलेंगे आपको? दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग एरियाज ऑफ प्लांट. जैसे ये टिप है प्लांट की, सपोज यहाँ पे प्लांट न्यू लीव्स आ जाएंगे, यहाँ से शूट से न्यू लीव्स आ जाएंगे. सो ग्रोइंग एरिया जहाँ से न्यू बड, न्यू शूट्स, न्यू लीव्स, ये सारी चीज़ें अराइज होती हैं, वहाँ पे कौन से टिश्यूज़ मिलेंगे आपको? मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़. New cells that are produced by meristem, they will be similar to meristem. मैंने पहले ही आपको बताया, they will be similar in structure, right?
एज दे ग्रो, जैसे जैसे जे कंटिन्यूसली बहुत बार ग्रो, ये डिवाइड होते रहे, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, बहुत बार डिवाइड हुए, ओनली देन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज एंड दे डिफ्रेंशिएट। ये बिल्कुल बहुत सिंपल है समझना। जैसे कि जब आप पहले आप बेबी होते हो, बेबी के बाद देन यू बिकम अ चाइल्ड, देन यू बिकम adolescence, and then become adult. Does you all in all stages you look same? You are dividing, your body is dividing. Do you look same? No. Body, your characteristic, your shape, your structure changes. Same way meristematic cells, when continuously divide, their characteristics changes, and when their characteristic changes ultimately they differentiate, और जब ये differentiate होते हैं only then they become परमानेंट। सो सबसे पहले सेल्स डिवाइड करते हैं, जब ये डिवाइड करते हैं प्लांट्स में, इनको कौन से बोला जाता है टिश्यूज़? मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़। बहुत सारी डिविजन्स के बाद ये मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि ये परमानेंट हो जाते हैं, फिर ये डिवाइड नहीं करते। जैसे आप एक बार जब एडल्ट बन जाते हो उसके बाद फिर आपकी बॉडी ज़्यादा ग्रो करती नहीं है, राइट। सो इस मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सेल्स बहुत ही एक्टिव हैं। एक्टिव कोई चीज़ कब होती है? जब वो कंटिन्यूसली आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, डिवाइड। सो दे ऑल आर लिविंग सेल्स। मेरिस्मेटिक सेल्स हमेशा आपको याद रखना है कि ये डेड सेल्स नहीं है। कोई भी चीज़ जब एक्टिव होगी वो लिविंग होती है। दे हैव वेरी मच अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, दे हैव डेंस, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है। इनकी जो वॉल है, दे हैव वेरी थिन सेलुलरिक वॉल। इसका भी रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी कि वाई दे हैव थिन सेलुलोज वॉल। दे हैव वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस बहुत ही ईजिली क्लियर। प्रोमिनेंट का मतलब होता है क्लियर, मतलब सेल अब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे आपको दिख जाएगा। दे लैक वैक्यूल्स। अब 3 चीज़ें मैंने न्यू आपको यहाँ बताई हैं। फर्स्ट, सेल्स वेरी एक्टिव, ये आपको समझ आ गया होगा अब तक। कोई चीज़ जब एक्टिव है तो इट विल बी लिविंग। दे हैव वेरी मच अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। दे आर डेंस साइटोप्लाज्म। सेलुलोज, ये जो वॉल है सेल की, इट इज़ थिन, इट इज़ नॉट थिक, इट इज़ वेरी थिन वॉल। ये इसका रीज़न पता करना है वाई इट इज़ थिन। देन दे हैव वेरी क्लियर न्यूक्लियस and they lack vacuoles. So 2 points here, why they have thin walls and why they do not have vacuoles. So that is a question time for you, that why meristematic cells they do not have vacuoles. See, vacuoles अगर आपने प्लांट सेल बनाया हो तो प्लांट सेल के यहाँ पे बहुत सी बड़ी सी वैक्यूल होती है। वैक्यूल का मेजर फंक्शन एक होता है, दैट इज़ फॉर द स्टोरेज, एंड इट मेक द सेल वेरी रिजिड। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, राइट। सो वैक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल्स, और कोई भी चीज़ जब हार्ड होगी तो इट विल नॉट बी एबल टू डिवाइड ईजिली। सो सेल्स आर नॉट क्विकली डिवाइड। सो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ लेकिन ऐसे इनको तो कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, सो दे कैन नॉट अफोर्ड वैक्यूल्स। सो दैट इज़ वाई मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, इसीलिए उनके पास वैक्यूल्स नहीं होती, बिकॉज वैक्यूल्स की वजह से सेल्स रिजिड हो जाते हैं और सेल डिवीजन रुक जाती है। सो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ दे नीड वेरी डेंस साइटोप्लाज्म एंड सॉफ्ट सेल वॉल। इसीलिए इनकी जो वॉल होती है दैट इज़ वेरी थिन सेलुलोजिक वॉल फॉर द easy division, quickly cell division. The last is we have to discuss in today's lecture is the types of meristematic tissues. Meristematic tissue 3 types के होते हैं, and it is a very important thing. It usually comes in the 3 marks. Anytime if question comes in 3 marks, you have to write down it with the diagram. So first is the 3 types कौन सी है meristematic tissues की. Meristematic tissue can be apical, they can be intercalary, they can be
कैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और दे आर लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल जो टिप पे मिलते हैं हमें प्लांट की, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो या तो लीव्स के बेस पे मिलेंगे, और या फिर देखिए ये स्टेम है तो देयर यहाँ से न्यू शूट अराइज होती है, यहाँ से न्यू, इसके बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं हम इंटर नोड। हमेशा याद रखो कि इफ़ यहाँ से लीव्स अराइज हो रहे हैं, यहाँ से शूट अराइज हो रही है, सपोज यहाँ से, दिस एरिया इज नोन एज इंटर node, and this area from where shoot arises, it is known as node. So new two words I told you, that is node and internode, right? और intercalary meristem present होता है on the internode. Lateral meristem, आपने woody trees अगर देखें, बहुत old trees, they have bark, उनका जो तना होता है दैट इज़ वेरी थिक. सो लेटरल मेरिस्टेम फाउंड इन बेसिकली वुडी ट्रीज एंड प्लांट्स. वन बाय वन वी विल सी देयर लोकेशन. एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप, टिप पे मिलेंगे. अगर ये शूट है तो इसकी टिप पे, अगर ये रूट्स ग्रो कर रही हैं तो रूट की टिप पे. सो दीज आर नोन एज, जो टिप पे प्रेजेंट होंगे दोज आर एपिकल मेरिस्टेम. ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम. अगर ये ग्रोइंग एरियाज ऑफ रूट में प्रेजेंट है, दे विल बी रूट एपिकल मेरिस्टेम. इसका फ़ायदा क्या है? दे कंटिन्यूसली डिवाइड. अब जब ये टिप पे प्रेजेंट है, दे हेल्प इन द इंक्रीज इन द लेंथ और हाइट ऑफ द प्लांट. सो अगर मैं एक्चुअल में बोलूँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ. सबसे पहले आप कहाँ एडमिशन लेते हो? प्राइमरीज में. सबसे पहले नर्सरी एंड देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी कम्स. सो सब जब सेल्स डिवाइड करते हैं और सबसे पहले जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को क्या बोलोगे आप? प्राइमरी ग्रोथ. इट इज़ जस्ट लाइक योर स्कूल. जैसे आप पहले प्राइमरी क्लासेस में होते हो, उसके बाद आप सेकेंडरी में एंटर होते हो. सेकेंड टाइप इज़ योर इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको कहाँ मिलेगा? बेस ऑफ द लीव्स. बेस ऑफ द लीव्स यहाँ पे इट इज़ हियर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट internode, then it will be here or will be the base of the leaf. It help in increasing in the length of internodes as well as leaves. लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो दिस इज़ योर लेटरल मेरिस्टेम. ऑन द साइड, साइड पे जो मेरिस्टेम मिलेगा, दैट इज़ on the side of stem as well as roots, that is lateral meristem. So ये width बढ़ाता है, चौड़ा करता है प्लांट को. डायमीटर ऑफ द स्टेम, कोई जब आप थोड़ा बॉडी आपकी ग्रो करती है, तब आप एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल पे तो पहुंच जाते हो. सो दीज लेटरल मेरिस्टेम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी growth. अब these lateral meristem, they are of further of two types. Cork cambium, क्योंकि ये secondary growth के लिए responsible हैं. They are of two types, cork cambium, vascular cambium. cork मैंने आपको बताया कि तना, अगर बहुत सारा मोटा सा जो तना होता है प्लांट का, अब अगर बड़ा प्लांट है, सो दिस एरिया, इस बार्क के नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम. इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ का मतलब होता है बिलो बार्क. वेस्कुलर कैम्बियम, ये मिलेगा आपको वेस्कुलर. प्लांट्स में पानी कौन कंडक्ट करता है? जाइलम. फूड कौन कंडक्ट करता है? फ्लोएम. तो वेस्कुलर बंडल्स में जो आपको टिश्यू मिलेगा, दैट इज़ वेस्कुलर कैम्बियम. और ये किसकी टाइप्स हैं? लेटरल मेरिस्टेम की. नाउ जस्ट लुक एट इट्स डायग्राम. जो भी रूट जो भी रूट टिप पे, अगर हम शूट टिप की बात करें तो दिस इज़ द apical meristem. And if you talk about roots, here on the roots की जब टिप्स की बात करें, here if we talk about, यहाँ पे आपको मिलेगा root apical meristem, right? On the tip, और if in the aerial portion, shoot tip पे apical meristem ही मिलेगा, but that is specifically shoot apical meristem. और root की tips पे आपको मिलेगा root apical meristem. intercalary meristem, देखिए अब ये क्या है? node. यहाँ से क्या arise हो रहा है? leaves और shoots,
राइट, नोड, ये भी क्या है, नोड, और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है दैट इज, ये क्या है, इंटरनोड। और यहाँ पे आपको कौन सा मेरिस्टेम मिलेगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटरनोड से याद रखिए इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ऑन द साइड ऑफ द स्टेम, बिल्कुल ये स्टेम है तो उसकी साइड्स पे कौन सा, जिसकी वजह से प्लांट क्या, चौड़ाई बढ़ती है, दैट इज नोन एज लेटरल मेरिस्टेम। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. Please go through this lecture very carefully. If you have any single doubt regarding any point, you can ask me, right? But please write each and everything very carefully in your notebook, as well as go through this lecture very carefully. I will meet you in the next lecture.